Ma'am, you can start. Okay. A very good evening. In the last session, we have started with the physical examination, and in the physical examination, हम लोगों ने बहुत सारे चीज we have discussed. So today we'll start with the reflex. So physical examination जब भी हम लोग करते हैं तो बहुत सारे reflex हम लोग ध्यान में रखते हुए, so the first one it is known as the biceps reflex. So biceps reflex में क्या होता है कि पेशेंट जो है we have to keep the patient's elbow in the resting position in 90 degree angle. So 90 degree में पेशेंट का elbow को हम लोग उसको रेस्टिंग पोजीशन में रखना है, एंड जो नर्स है उसका थंब उस हाथ का जो एंटीक्यूबिटल फॉसा है दैट इज इनसाइड द एल्बो वहां पे प्लेस करना है. देन we have to ask the patient to flex their forearm, that is contract their biceps muscle, and while simultaneously as a nurse we have to palpate the fossa. उसके बाद क्या होता है, जो बाइसेप्स टेंडन है ना ये बहुत टाइट हो जाते हैं, सो इट बिकम वेरी टाइट एंड रेडिली दिखाई देते, अपेरेंट होता है. देन we have to place the thumb, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, we have to place the thumb over the tendon and tap the pointed side. जो परकशन हैमर का जो पॉइंटेड साइड है ना उस पॉइंटेड साइड से हम लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्स करना है. वी हैव टू टैप. देन टैप जब करेंगे, टैप करने के बाद we can observe the reflex in their biceps. The next one is the triceps reflex. और जो triceps reflex है, in that we have to grasp the patient's wrist. patient का जो wrist है, जैसे यहाँ पे in the second picture it is visible, उनका पेशेंट का रिस्ट में हम लोगों को होल्ड करना है, ग्रिप्स करना है. करने के बाद जो अपना जो लेफ्ट हैंड, विद आवर लेफ्ट हैंड वी हैव टू ग्रिप्स एंड वी शुड पुल द पेशेंट्स आर्म. ओके, पेशेंट्स आर्म को हम लोग को पुल करना है अक्रॉस हिज चेस्ट, सो दैट द एल्बो इज फ्लेक्स. सो इजीली एल्बो फ्लेक्स होगा अबाउट 90 डिग्री एंगल में, एंड द फोरआर्म इट इज पार्शियली बेंड डाउन. सो नीचे थोड़ा बहुत बैंड होगा, नीचे तरफ थोड़ा सा बैंड होगा. Then we need to tap the triceps brachial tendon directly over the Ollenkrine process. जो फर्स्ट पिक्चर जो दिखाई दे रहे हैं Ollenkrine process में, जब हम लोग टैप करेंगे थ्रू द परकशन हैमर, द नॉर्मल एल्बो जो रेस्पॉन्स करेगा ना वो एक्सटेंड हो जाएगा. पहले क्या था, ये 90 डिग्री एंगल में हम लोग को उसको होल्ड करना है, बट वंस वी विल टैप इट, सो द नॉर्मल रेस्पॉन्स में एल्बो एक्सटेंशन 90 डिग्री से ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल रेस्पॉन्स. देन द थर्ड वन इज पेटलर रिफ्लेक्स. सो पेटलर रिफ्लेक्स हम लोग को कहाँ पे रिफ्लेक्स करना है, थ्रू द परकशन हैमर वी हैव टू टैप ऑन द पेटेला. ओके, एंड द फोर्थ वन इज Assel's reflex. In it is it tests about the sacrum 1 and sacrum 2 nerve root and as well as the sciatic nerve का function. So we have to keep the patient sit on a chair or table so that उनका जो दो पाव है ना both fit, it has to hang over the edge. नीचे तरफ ये hang पाव ये hang होना है उसका fit. Then locate the Assel tendon. यहाँ पे बहुत clearly visible है on the right foot and tap it with the reflex hammer. Okay, तो एक बार जब tapping करेंगे through the reflex hammer, then what happens? Then normally the foot should move downwards into your hand. So if this response or the reflex it is normal, then automatically patient का जो foot है ना downward move करेगा through in our hand. Now next one is the plantar reflex. So the plantar reflex during the childhood, जब बच्चे रहते हैं ना उसको Babinski reflex भी बोलते हैं. Okay, so in this plantar reflex, through a we should not use any type of sharp object. Blunt objects है ना हम लोगों को just इसमें एक sensation देना है, how it is showing. So through the sensation, once the patient will get, normally क्या होगा, उनका जो पाव जो fingers है ना toes, it will bend forward. Okay, and this is known as the normal and the negative Babinski sign. But अगर बच्चे हैं तो उनका क्या होता है, ये upward ये extend हो जाता है. So that is the abnormal reflex.
So if in adulthood it is still there, then it shows the spinal cord deformity. The plantar reflex with the time it should not be there, ये resolve हो जाना चाहिए. But in the adulthood also, if it is present, then it is a sign of spinal cord deformity. Now we'll start with the vital sign. So vital sign, it is also known as कार्डियल साइन. इसको हम लोग कार्डियल साइन भी बोलते हैं. So क्या क्या कार्डियल साइन है? टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन है. अभी 6th वाइटल साइन पेन को बोलते हैं. सो पेन इज द 6th वाइटल साइन. सो यहाँ पे तो हम लोगों को 5 वाइटल साइन है जो मेजर वाइटल साइन, दैट इज टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड द ऑक्सीजन सैचुरेशन. एंड 6th वाइटल साइन जो है दैट इज द पेन. 6 नंबर वाइटल साइन पेन को बोलते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टेम्परेचर. क्या है? सो टेम्परेचर इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हीट. सो बॉडी जितना हीट मेंटेन करते हैं ना, और वी कैन टेल ऑल्सो द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. अपना बॉडी है ना, it is producing the heat, ठीक है, and heat it is maintained by our brain, okay, hypothalamus of our brain. Hypothalamus it is also called the thermoregulatory system of our body. thermoregulatory mechanism को hypothalamus ही maintain करते हैं. तो अपना बॉडी जो हीट मेंटेन करते हैं, द डिग्री ऑफ हीट और द बैलेंस बिटवीन जितना भी हीट प्रोडक्शन होता है और हीट लॉस का जो बैलेंस है उसको बोलते हैं टेम्परेचर. तो यहाँ पे दो चीज हम लोग को याद रखना है, एक है थर्मोजेनेसिस और एक है थर्मोलाइसिस. तो थर्मोजेनेसिस क्या है? थर्मोजेनेसिस का मतलब है केमिकल रेगुलेशन ऑफ द हीट प्रोडक्शन. ओके, जो हीट प्रोडक्शन का जो केमिकल रेगुलेशन है ना उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और द थर्मोलाइसिस बोलते हैं फिजिकल रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस. तो यहाँ पे जो दो चीज है ना, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस. thermogenesis it is related with the heat production. so body जो chemical regulation जो है ना हीट प्रोडक्शन को, उसको बोलते थर्मोजेनेसिस, और हीट लॉस का जो फिजिकल रेगुलेशन है ना इसको बोलते थर्मोलाइसिस. नाउ हाउ द थर्मोजेनेसिस हैपेंस इन आवर बॉडी. बॉडी में कैसे थर्मोजेनेसिस होता है, दैट इज द हीट प्रोडक्शन बॉडी में कैसे होता है, नो केमिकल रेगुलेशन. फर्स्ट कैसे होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड. जब हम लोग खाना खाते हैं, ओके, खाना जब जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इट गिव्स द 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो ईच किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जब बॉडी प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं. और 1 ग्राम ऑफ फैट हम लोग को देते हैं 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. सो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड ऑक्सीडाइज होता है ना उस समय बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द फर्स्ट केमिकल मैकेनिज्म. उसके बाद है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड. इन द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, इन दैट कार्बोहाइड्रेट जो है वो देते हैं 5 to 6% ऑफ द हीट प्रोडक्शन ऑफ आवर बॉडी. देन प्रोटीन वो 30% मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन करते हैं. देन फैट वो करते हैं 4% ऑफ हीट प्रोडक्शन. एंड मिक्स्ड डाइट ये करते हैं 12%, दैट इज 12% ऑफ द हीट प्रोडक्शन. So this is related to the thermogenesis. Okay, now let us see the thermolysis. Okay, so thermolysis क्या है? Thermolysis that is ways of losing heat from our body. So thermolysis is the physical mechanism of losing heat from our body. So heat loss body से कैसे कैसे होता है? So first there are 5 main methods of heat loss from our body. Radiation है, convection है, कंडक्शन है, इवापोरेशन है और रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, ये 5 मेथड से जो अपना बॉडी है ना, बॉडी हीट लॉस करते हैं. तो लेट अस सी रेडिएशन कैसे करते हैं. सो हीट लॉस फ्रॉम एक्सपोज्ड स्किन और पोर्स फ्रॉम द बॉडी. जब अपना बॉडी का कोई भी पार्ट या स्किन रेडिएशन में एक्सपोज होता है ना, सो हीट लॉस होता है फ्रॉम दैट पार्ट. उसके बाद आता है कन्वेक्शन. Convection means heat loss from wind displacing a layer of warm air near the skin. Third is conduction. Conduction में क्या होता है? Heat loss through the contact with a cooler object, that is cold floor.
अगर हम लोग को बहुत गर्मी लगता है, if we are sitting on the floor, our body it becomes cool or we feel cool because our body is losing the heat, and this process is known as conduction. So conduction तब भी होता है जब हम लोग का बॉडी कोई भी कूलर ऑब्जेक्ट का, कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट का कंटैक्ट में आता है एंड आवर बॉडी हीट लॉस करता है. Then fourth one is evaporation. So evaporation is heat loss when the body loses water due to the evaporation, that is sweat. जब हम लोग if suppose you went to like no under sunlight, मतलब धूप के नीचे हम लोग गए हैं, तो इतना धूप के नीचे जाने के बाद भी हाउ आवर बॉडी इज मेंटेनिंग द हीट, कैसे हम लोगों का बॉडी हीट मेंटेन कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्वेट. So body jitna through the sweat, our body is losing the water. So once the body is losing the water, with that the body heat is also reducing. The process is known as evaporation. And the fifth one is respiration. Heat loss from inhaling and exhaling the colder air. जब ठंडा एयर हम लोग इनहेल करते और एक्सेल करते, then automatically our body is losing the heat and we feel cold. एंड ये मैकेनिज्म, ये रेस्पिरेशन, ये मैकेनिज्म के ऊपर जब हम लोग कूलर के नीचे बैठने से हम लोग को ठंडा लगता है, फैन के नीचे बैठने से, एसी के नीचे बैठने से हम लोग को ठंड लगता है. So these are the 5 types or 5 ways of losing heat from our body, which are known as thermolysis. That is radiation, convection, conduction, evaporation and respiration. Now let us see the other ways of thermolysis. कैसे body heat loss करते through the kidney, lungs and as well as through the bowel. So kidney, lung और bowel भी हम लोगों को thermolysis यानी कि heat loss में help करते हैं. तो thermolysis कैसे होता है? First of all through the skin. So previous slide में हम लोग जो भी 5 ways देखा है ना, radiation, evaporation, convection, conduction and respiration, these are through the skin. Then second is kidney, then lung and as well as the bowel. Now coming to the types of temperature. क्या क्या temperature के क्या क्या types है? So temperature का है ना 2 main type है, एक है cold temperature, एक है surface temperature. तो cold temperature का मतलब है temperature of the deep tissue of body. बॉडी का जो डीप टिश्यू है उसका जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर. ये कोर टेम्परेचर है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट द कोर टेम्परेचर इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो डीप टिश्यू का जो टेम्परेचर है ना ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है. बट इफ वी सी द सेकंड वन, दैट इज द सरफेस टेम्परेचर. सरफेस टेम्परेचर है द टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनस टिश्यू. ओके, स्किन का और सबक्यूटेनस टिश्यू का जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं सरफेस टेम्परेचर. एंड सरफेस टेम्परेचर इट यूज्ड टू राइज एंड फॉल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट. इसलिए जो अपना स्किन का और सबक्यूटेनस टिश्यू का जो टेम्परेचर है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं, धूप के नीचे जाते हैं, तो अपना बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, स्किन हीट प्रोड्यूस करते हैं, स्किन टच करने से भी गर्मी लगते हैं. बट वंस वी आर कमिंग एंड सिटिंग अंडर द एसी और अंडर द फैन, then automatically it become cool. So the surface temperature it rise and fall in relation to the environment. So 2 types of temperature, core temperature and surface temperature. Core temperature is temperature of the deep tissue of the body which remains constant, जो कभी change नहीं होता है. But surface temperature ये rise fall करते हैं environment के साथ. Environment गर्म होने से ये भी गर्म होते हैं, body temperature like no it used to increase. एंड अगर टेम्परेचर कूल होता है तो द स्किन एंड सबक्यूटेनस टिश्यू का टेम्परेचर भी कूल रहता है. नाउ जो नॉर्मल जो वेरिएशन है अपना बॉडी का वो है 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो नॉर्मल वेरिएशन है 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, एंड जो अगर हम लोग बोले कि डायर्नल वेरिएशन, that is the body temperature normally ये change होता है 0.5 to 1 degree centigrade during the 24 hours period. तो पूरा 24 hour period में
अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो क्या होता है 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये वेरिएशन होते रहते हैं, जिसको बोलते हैं डायर्नल वेरिएशन। ओके, अभी हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, बॉडी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, it used to be there in between 4 to 6 PM in the evening। जो इवनिंग का जो 4 बजे से 6 बजे के अंदर अपना बॉडी का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, और सुबह सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो होता है 4 बजे से 6 बजे इन द मॉर्निंग, दैट इज 4 to 6 o'clock in the morning। So highest temperature we can feel in 4 to 6 PM in the evening, and lowest temperature that is 4 to 6 AM in the morning। okay, and जब भी हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं कोई पेशेंट का, अगर टच करके हम लोग पेशेंट का टेम्परेचर फील कर रहे हैं, if we want to feel the temperature by our hand, always we should use the dorsal surface of our hand। तो dorsal surface इसलिए है वहां पे हम लोग को ना वेंडिंग ज्यादा है, ब्लड वेसल ज्यादा है, and we can feel it easily। इसलिए अगर कोई पानी या कोई सरफेस का टेम्परेचर भी हम लोग को फील करना है, वी यूज टू यूज द डॉर्सल सरफेस ऑफ आवर हैंड। ओके, so use the dorsal surface of the hand while taking the temperature। और एक चीज भी हम लोग को याद रखना है, मेंस्ट्रुएशन के बाद अपना टेम्परेचर, फीमेल का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन the female menstruation, after menstruation the temperature used to decrease in the female, and ovulation के बाद, or during the ovulation always the temperature used to increase due to the hormone progesterone, because उस समय प्रोजेस्टेरोन हाई पीक लेवल में होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ दैट ओवुलेशन के टाइम में या सून आफ्टर द ओवुलेशन फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है ना इंक्रीज होता है। ओके, नाउ लेट अस सी द कॉमन साइट ऑफ टेकिंग द टेम्परेचर। सो कॉमन साइट जो है दैट इज द ऑरल माउथ। माउथ में कहाँ पे, ऑरल कैविटी में हम लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। देन एक्सिलरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्मपिट। ओके, एक्सिलर में टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और रेक्टम में हम लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ओके, सो 3 एरिया में हम लोग टेम्परेचर कॉमनली चेक करते हैं। ओके, कॉमन साइट ऑफ टेकिंग द टेम्परेचर, ऑरल, एक्सिलरी एंड रेक्टम। अभी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो ऑरल टेम्परेचर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑरल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी बोलता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि where we can find the normal body temperature, always you should remember that this is found in the oral cavity। so oral temperature है, it gives us the normal body temperature। so normal body temperature है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अभी जो बॉडी का जो 3 जगह में, जो कॉमन 3 जगह में हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वहां पे थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी रहते हैं। तो नॉर्मल वेरिएशंस ऐसा रहता है कि रेक्टल जो टेम्परेचर है ये यूजुअली 1 डिग्री हायर देन द ओरल टेम्परेचर। तो ओरल में अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिस इज द नॉर्मल वन, सो रेक्टल में ये होगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वी कैन ऑल्सो से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इन केस ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर, अगर वही टेम्परेचर हम लोग एक्सिला में देखें, एक्सिला में चेक करें, it will be 1 degree lower than the oral temperature। that means अगर oral में the normal body temperature is 98.6 degree, in axilla it will be 97.6 degree, that is 36.4 degree Celsius। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि oral temperature जो है ना वो बीच में आता है। oral temperature it used to come in the middle, which is 98.6 degree Fahrenheit। then
एक्सिलरी टेम्परेचर उससे थोड़ा 1 डिग्री कम है, दैट इज 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड रेक्टल टेम्परेचर ये है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 1 डिग्री ज्यादा है फ्रॉम द ऑरल टेम्परेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट, एंड पीपल यूज टू गेट कंफ्यूज हियर. लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज होता है. नेक्स्ट कैसे हम लोग ऑरल टेम्परेचर चेक करते हैं, हाउ टू चेक द ऑरल टेम्परेचर. तो ऑरल टेम्परेचर जब भी हम लोग को चेक करना है ना, तो चेक करने के टाइम में वी नीड टू प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द इन द सबलिंगुअल पॉकेट. ओके, क्लियरली यहाँ पे विजिबल है इन द फर्स्ट पिक्चर. ओके, अंडर द टंग. ओके, अंडर द टंग इन द सबलिंगुअल पॉकेट में हम लोग थर्मोमीटर को प्लेस करना है, and have the patient close his mouth around it. Once you have placed the thermometer, सबलिंगुअल पॉकेट में आप जब अंडर द टांग जब भी थर्मोमीटर आपने प्लेस किया है ना, आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है उसका माउथ क्लोज करने के लिए, नहीं तो टेम्परेचर थर्मोमीटर प्रॉपर कंटैक्ट में नहीं आएगा. ओके, स्किन के साथ प्रॉपरली कंटैक्ट में नहीं आएगा, आपका रीडिंग गलत होगा या मुंह से थर्मोमीटर गिर जाएगा. एंड ऑल्सो उसके साथ जब भी आप पेशेंट को बोल रही हो मुंह को बंद करने के लिए, ये भी इंस्ट्रक्शन देना है ताकि वो बाइट ना करे, इसको चबा ना दे. ओके, लेट देम नॉट टू लाइक इंस्ट्रक्ट देम नॉट टू बाइट. ओके, सो थर्मोमीटर सेम पोजीशन में थर्मोमीटर आपको छोड़ना है, रखना है यहाँ पे फॉर 3 to 4 minutes. ओके, एंड एट द सेम टाइम आप पेशेंट को बोलना है ही नीड टू ब्रेथ नॉर्मली. नॉर्मल उनको ब्रेथ लेना है थ्रू द नोज, नाक से उसको ब्रेथ लेना है, मुंह को ओपन नहीं करना है. ओके, एंड ऑल्सो द पेशेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग, उसको बात नहीं करना है, शी शुड नॉट टॉक. और इफ द पेशेंट हैज बीन ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ब्रशिंग हिज टीथ or chewing gum within past 15 minutes, wait at least 15 minutes to take the temperature. अगर पेशेंट ने कुछ खाया है या कुछ पिया है, स्मोक किया है, ब्रश किया है और कुछ चिंगम च्यू किया है, तो यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर लेना है. बहुत सिंपल है. ऑरल टेम्परेचर में थर्मोमीटर सबलिंगुअल पॉकेट में अंदर द टांग प्लेस करना है एंड 3 से 4 मिनट तक वहां पे ही रखना है. पेशेंट को बोलना है मुंह बंद कर रखने के लिए, उसको बाइट नहीं करना है, बात नहीं करना है और नॉर्मल ब्रेथ लेना है थ्रू द नोज. बस इतना ही. ओके, वेरी इजी. देन कमिंग टू द एक्सिलरी टेम्परेचर. सो एक्सिलरी टेम्परेचर कैसे लेता है, प्लेस द थर्मोमीटर फॉर 5 मिनट्स. एक्सिला में थर्मोमीटर को 5 मिनट तक रखना है, प्लेस करके रखना है. अगर हम लोग रेक्टल टेम्परेचर लेना चाहते हैं, एंड रेक्टल टेम्परेचर रिमेंबर दैट इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट. तो टेम्परेचर असेसमेंट का अगर मोस्ट रिलायबल मेथड हम लोग बोले, सो दैट इज द रेक्टल मेथड. सो रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए वी हैव टू प्लेस द थर्मोमीटर फॉर 5 मिनट्स. तो 5 मिनट थर्मोमीटर को प्लेस करना है. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, रेक्टम में अगर थर्मोमीटर हम लोग को प्लेस करना है, तो कितना सेंटीमीटर या कितना इंच हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट शुड गो अप टू द रेक्टम, नो. तो इंसर्ट द थर्मोमीटर 1.5 इंच फॉर एडल्ट. तो 1.5 इंच एडल्ट के लिए हम लोग को इंसर्ट करना है, और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उसके लिए हम लोग को 1 इंच इंसर्ट करना है. ओके, नाउ व्हाट इज द कंट्राइंडिकेशन. कंट्राइंडिकेशन मतलब है किस कंडीशन में हम लोग रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं. तो इन केस ऑफ डायरिया, अगर कोई बच्चे को डायरिया है, कोई बच्चे को डिसेंट्री है, किसी को रेक्टल सर्जरी हुआ है, किसी का अगर रेक्टम कैंसर है, इन दैट केस इट इज कंट्रा इंडिकेटेड. ओके, सो एक्सिलरी टेम्परेचर लेने के लिए 5 मिनट एक्सिला में थर्मोमीटर को प्लेस करना है. रेक्टल टेम्परेचर के लिए भी 5 मिनट हम लोगों को रखना है, बट थर्मोमीटर 1.5 इंच फॉर एडल्ट के लिए इंसर्ट करना है और 1 इंच बच्चे के लिए इंसर्ट करना है. नाउ
अभी अगर हम लोगों को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं कि कन्वर्ट दिस मच डिग्री, सपोज 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो आप कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट TF, द फर्स्ट वाला जो ब्लू से दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर है, TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into temperature in Celsius, TC मतलब temperature in Celsius plus 32. So temperature of Fahrenheit अगर हम लोगों को find out करना है, so temperature in Celsius automatically it will be there. So 9/5 into temperature in Celsius plus 32. ये है अगर हम लोगों को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, in that case TC, that is temperature in Celsius, is equal to 5/9, okay, 5/9 into TF, that is temperature in Fahrenheit minus 32, okay. So temperature in Fahrenheit में आपको plus 32 करना है and temperature in Celsius अगर find out करना है उसमें minus 32 हम लोगों को करना है, -32 करना है, एक में +32, एक में -32, एक में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर करना है तो 9/5 होगा एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस करना है वो 5/9 होगा, दैट इज द डिफरेंस। तो प्लीज बाय हार्ट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Coming to the next slide, the pyrexia, the meaning of pyrexia. Okay, we will talk about pyrexia. Pyrexia और फीवर। पायरेक्सिया का मतलब फीवर है, सो उसमें माइल्ड फीवर, सो माइल्ड फीवर है 99, अगर बॉडी टेम्परेचर 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको बोलते हैं माइल्ड टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर दैट इज 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। सीवियर पायरेक्सिया दैट इज 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो दैट इज कंसिडर्ड एट सीवियर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया तब भी हम लोग बोलेंगे जब बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, तब हम लोग इसको हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज नॉर्मोथार्मिया और इओथार्मिया। नॉर्मोथार्मिया और इओथार्मिया का मतलब है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलते नॉर्मोथार्मिया और यूथार्मिया। उसके बाद हाइपोथार्मिया। हाइपोथार्मिया है, हाइपो मतलब कम, ओके, सो लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो आप लोग इसको कंडीशन को हाइपोथर्मिया बोलेंगे। और सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे इफ बॉडी टेम्परेचर इज 90 इन बिटवीन 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है उसको हम लोग सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे। तो दिस शॉर्ट important है, very important this part. Now we'll talk or we'll see different types of fever. अलग अलग फीवर का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, बहुत सारा फीवर्स का डेफिनेशन है, we'll see. पहला है इंटरमिटेंट फीवर, किसको हम लोग इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे? टेम्परेचर आइदर वेरीज फ्रॉम नॉर्मल टू फेब्रिल लेवल ड्यूरिंग सिंगल डे और फीवर में ऑकर वन डे एंड रिकर इन अबाउट 1 to 3 days. तो इंटरमिटेंट फीवर का मतलब है जो बॉडी टेम्परेचर है ना, ये नॉर्मल से फेब्रिल लेवल, दैट मीन्स फीवर, नॉर्मल टेम्परेचर से ये फीवर तक है ना, एक ही डे में वेरी करते हैं। एक बार नॉर्मल है, एक बार हाई टेम्परेचर है, देन अगेन इट बिकम नॉर्मल, अगेन इट बिकम हाई, ठीक है। ऐसा अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वेरी हो रहा है
और ये भी हो सकते 1 से 3 दिन तक बॉडी टेम्परेचर एक बार रिड्यूस होता है, एक बार हाई हो रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है, एक बार ज्यादा हो रहा है, इसको बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर। सो इंटरमिटेंट फीवर में एक दिन में भी बार बार टेम्परेचर एक बार रिड्यूस होगा, एक बार हाई होगा, नहीं तो 1 to 3 डेज तक टेम्परेचर है ना वेरी करते रहेगा बॉडी टेम्परेचर, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नाउ रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब है फीवर जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है एट ए रेगुलर इंटरवल। मतलब रेगुलर इंटरवल में बॉडी टेम्परेचर एक बार हाई होता है, उसके बाद एक बार लो हो रहा है, देन सेम ड्यूरेशन में एक बार फिर से हाई हो रहा है, फिर से लो हो रहा है, तो बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। सो टेम्परेचर वेरिएशन इज मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो टेम्परेचर वेरिएशन अगर मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री वेरिएशन होता है, इसको भी रेमिटेंट फीवर हम लोग बोलेंगे। टेम्परेचर हाई हो रहा है और लेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है सडन रिटर्न फ्रॉम द टेम्परेचर टू द नॉर्मल रेंज फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर से सडनली नॉर्मल टेम्परेचर में अगर रिटर्न हो जाता है नॉर्मल रेंज में, उसको हम लोग क्राइसिस बोलेंगे। लाइसिस किसको बोलते हैं? लाइसिस बोलते हैं अगर टेम्परेचर जिगजैग मैनर में फॉल कर रहा है फॉर डेज और फॉर वीक बिफोर रीचिंग टू द नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग 98.6 डिग्री है, तो लाइसिस में क्या होता है, टेम्परेचर तो फॉल हो रहा है, मतलब जिगजैग मैनर में टेम्परेचर फॉल हो रहा है, बट नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आया है। सपोज पहले 103 था, 103 से इट बिकेम इनटू 102, 102 से ये बिकेम 101.6, देन अगेन इट रीच्ड इनटू 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98.6। तो ये जिगजैग मैनर में जो टेम्परेचर फॉल करता है ना, उसको बोलते हैं लाइसिस। ठीक है, देन द कंटिन्यूअस फीवर। सो कंटिन्यूअस फीवर इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्टेंट फीवर, मतलब कंस्टेंटली टेम्परेचर हाई है, उसमें कोई भी रिडक्शन और रिड्यूस नहीं हो रहा है। Then coming to the inverse fever. So inverse fever, it is characterized by the highest temperature in the morning and lowest temperature in the evening. Okay, so हम लोग जो previous slide में हम लोग क्या देखा था, नॉर्मली जो अपना टेम्परेचर मॉर्निंग 4 to 6 o'clock के बीच हम लोगों का टेम्परेचर सबसे बॉडी का कम रहता है, बट इवनिंग में 4 to 6 o'clock में हम लोग का टेम्परेचर मतलब पूरी दिन में बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है। बट इनवर्स फीवर में क्या रहता है, मॉर्निंग में हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है बट इवनिंग में लोएस्ट टेम्परेचर रहते हैं। सो बिकॉज इट लाइक नो ये उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स फीवर। देन नेक्स्ट इज राइगर। व्हाट इज राइगर? सो राइगर इज सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर अगर सडनली राइज हो गया, ओके, अलोंग विथ शिवरिंग, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर राइज भी हो गया, शिवरिंग भी हो रहा है, एज वी आर सीइंग इन द मलेरिया। सो मलेरिया में क्या होता है, राइगर बहुत कॉमन है, सडनली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके साथ क्या होता है, शिवरिंग भी रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज फेस्टिजियम और स्टेडियम। ओके, फेस्टिजियम और स्टेडियम। So it is a period when body temperature reaches its maximum level and remain fairly constant at high temperature. उसमें क्या होता है, एक टाइम है जिस टाइम में बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल में रीच हो गया, ओके, मैक्सिमम लेवल तक रीच हो गया, एंड फॉर ए टाइम पीरियड, ओके, फॉर ए टाइम पीरियड ये जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है ना, ये कांस्टेंट रह गया, okay, it reaches the maximum level and it become constant there. So this is known as fastigium or stadium. Then Tarsian fever. Tarsian fever means जब भी फीवर एवरी थर्ड डे में एक बार करके रिपीट हो रहा है, हर 3 दिन में फीवर आ रहा है, उसको बोलते हैं टार्शियन फीवर। क्वार्टन फीवर, हर 4th डे में, there is a little mistake here in the slide. So quartan fever means when fever occurs in every 4th day. There is a typing mistake, little typing mistake. Quartan fever occurs when once in every 4th day. Quart,
क्वार्ट मीन्स 4, हर एक 4 दिन में अगर फीवर रिपीट होता है। नेक्स्ट इज इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब है हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द मॉर्निंग एंड लोएस्ट इन द इवनिंग। ऑलरेडी आई टोल्ड इट। ओके, तो अभी हम लोग को अगर हम लोग टेम्परेचर लेते हैं पेशेंट का, ओके, टेम्परेचर लेने के टाइम में सम ऑफ द थिंग्स थर्मोमीटर को क्लीन करना है। ओके, तो कैसे हम लोग क्लीन करेंगे? सो बिफोर द टेम्परेचर चेकिंग, सो टेम्परेचर चेक करने से पहले हम लोगों को बल्ब से स्कैम तक क्लीन करना है, बिकॉज हम लोग कंसिडर करते हैं बिफोर चेकिंग टेम्परेचर बल्ब इज द क्लीनेस्ट पार्ट एंड स्टेम इज द डार्टिएस्ट पार्ट। तो ऑलवेज क्लीनिंग का जब भी हम लोग क्लीन करते तब ये प्रिंसिपल फॉलो करते फ्रॉम द क्लीनेस्ट पार्ट टू द डार्टिएस्ट पार्ट। सो टेम्परेचर लेने से पहले we consider that bulb is the cleanest part and stem is the dirtiest part. So cleaning होगा bulb से stem। और टेम्परेचर जब हम लोग ले लिया एक बार and the bulb it came into the contact of the patient's skin, पेशेंट का स्किन का कंटैक्ट में एक बार आ गया, तब हम लोग कंसिडर करते हैं bulb is the dirtiest part. So after taking the temperature जो cleaning होगा that should be stem to bulb. Okay, so after temperature we consider the bulb is the dirtiest part. Bulb is the cleanest part and stem is the dirtiest part. So cleaning should be stem to bulb. अभी हम लोग कैसे क्लीन करेंगे? So before checking the temperature, the thermometer it should be disinfected with 1:40 strength of Dettol. Okay, so 1:40 strength of Dettol हम लोगों को 5 मिनट या 1:40 strength of Savlon 5 मिनट हम लोग को डीप करके रखना है, क्लीन करना है। अगर हम लोग लाइजॉल या कोई कार्बोलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ होगा 1:40, बट उसका टाइमिंग होगा फॉर 3 मिनट्स। ओके, तो बिफोर द डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर होगा 1:40 स्ट्रेंथ ऑफ डेटल और 1:20 स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर 5 मिनट्स। सो 5 मिनट तक डेटॉल या सेवलॉन हम लोग यूज कर सकते हैं, बस स्ट्रेंथ डेटॉल का होगा 1:40 और सेवलॉन का 1:20। लाइजोल और कार्बोलिक एसिड के लिए 3 मिनट उसका कंटैक्ट में रखना है, उसका स्ट्रेंथ होगा 1:40। एंड रेक्टल मेथड इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर टेकिंग टेम्परेचर एंड मोस्ट कॉमन मेथड जो है टेकिंग द टेम्परेचर दैट इज oral. So oral is the most common method of taking the temperature. And 2 more definitions are there. One is relapsing fever. Relapsing fever का मतलब है there is a brief febrile period followed by 1 to 2 day of normal period. तो 1 से 2 दिन नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम तक, लंबा टाइम तक फीवर रहते हैं। देन अगेन फीवर के बाद 1-2 दिन नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद अगेन द फीवर कम्स, उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। देन PUO बहुत कॉमन है, हॉस्पिटल में बहुत दिखाई देते हैं, पाइडेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। PUO द फुल फॉर्म इज पाइडेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। सो इलनेस एटलीस्ट 3 weeks ड्यूरेशन विथ फीवर, ओके, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। सो 38 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा है टेम्परेचर, 3 हफ्ता तक फीवर है, तो 3 week तक 21 डेज तक कंटिन्यूअस फीवर है जहाँ पे टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और डायग्नोसिस couldn't make even if the patient is hospitalized for 1 week। मतलब 3 हफ्ता तक फीवर है, उसमें पेशेंट 1 हफ्ता हॉस्पिटलाइज है, फिर भी फीवर क्यों हो रहा है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है। So in that case it will be known as pyrexia of unknown origin. Now we will jump into the pulse. अभी तक हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात किया है, अभी हम लोग पल्स के बारे में बात करते हैं। सो पल्स क्या है? पल्स है पल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो व्हिच इज नोटेड एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी का डिफरेंट जो पॉइंट्स है, हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट में जो पल्पेबल बाउंडिंग ब्लड फ्लो का जो पल्पेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं पल्स, सिंपल टर्म में। तो नॉर्मल पल्स रेट कितना है? नॉर्मल है जो रेंज है दैट इज 60 to 100 beats per minute। ओके, सो साइड से 100 बीट 60 to 100 beats per minute अगर है, इन बिटवीन दैट इज द नॉर्मल पल्स रेट। सो नॉर्मल पल्स रेट है ना, कुछ कुछ केस में रेड्यूस भी होता है।
सो कब रेड्यूस होता है नॉर्मल पल्स रेट? सिडेटिव ड्रग अगर आपने कोई भी पेशेंट को दिया है वो पल्स रेट को रेड्यूस करते हैं। और कैफीन, अगर कॉफी, देन एट्रोपिन, देन थायराइड, देन इन्फेक्शन, ये पल्स रेट को है ना इंक्रीज करते हैं। ओके, सो कैफीन, एट्रोपिन, थायराइड, इन्फेक्शन, सो ऑल दोस थिंग्स विल रेज द पल्स रेट, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिडेटिव ड्रग पल्स रेट को रेड्यूस कर देते हैं। अभी एक टर्म है जो बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज पल्स डेफिसिट। पल्स का डेफिसिट किसको बोलते हैं? पल्स का डेफिसिट बोलते हैं इफ देयर इज ए if there is a difference between apical and the radial pulse। अगर apical pulse और radial pulse के बीच जो भी डिफरेंस फाइंड आउट होता है ना, उसको पल्स डेफिसिट बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द पल्स साइट, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला था, कहाँ कहाँ पे बॉडी का कौन कौन सा साइट में हम लोग पल्स चेक कर सकते हैं। सो द पल्स में बी मेजर्ड इन 9 साइट, बॉडी का 9 साइट में हम लोग पल्स चेक कर सकते हैं। क्या है? फर्स्ट टेम्पोरल, ऊपर टेम्पोरल, देन कैरोटिड, देन एपिकल, ब्रैकियल, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सलिस पेडलिस। ये 9 एरिया में हम लोग टेम्परेचर द पल्स हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड ऊपर जो पिक्चर दे रहा है ना, ऊपर का जो पिक्चर है टेकिंग ए पल्स, यू कैन इजिली सी only 2 fingers, the first and second fingers only are used to check the pulse. So never ever use the thumb to check the pulse because thumb में आर्टरी है, इसलिए हम लोग पल्स अगर चेक करेंगे तो अपना आर्टरी का ही पल्पेशन हम लोगों को समझ में आएगा, पेशेंट का पल्पेशन वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। इसलिए पल्स चेक करने के टाइम में जो ऊपर पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर्स ओनली वी आर सपोज टू यूज। तो 9 साइट में हम लोग पल्स चेक कर सकते हैं। तो टेम्पोरल कहाँ पे है? तो दैट साइट इज अबव द लेटरल टू द आई। तो आंख के साइड में है, where the temporal artery passes over the temporal bone of the head। यहाँ पे अपना temporal bone है, so temporal bone के ऊपर जो temporal artery जो पास होता है which is lateral to the eye, आंख के साइड में है, वहाँ पे हम लोग temporal pulsation feel कर सकते हैं। If we have to talk about the carotid, so carotid जो पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं क्लियरली एट द साइड ऑफ द नेक के साइड में है, जहां पे कैरोटिड आर्टरी रन करते हैं बिटवीन द ट्रैकिया एंड द sternocleidomastoid मसल। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी रन कर रहे ट्रैकिया और द sternocleidomastoid मसल्स के बीच में एट द साइड ऑफ द नेक, वहां पे हम लोग कैरोटिड आर्टरी चेक कर सकते हैं। एपिकल एट द एपेक्स ऑफ द पल्स, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट पल्स रेट हम लोग को मिलेगा फ्रॉम द एपिकल पल्स। ओके, then coming to the brachial at the inner aspect of the biceps muscle। तो biceps muscle का जो inner aspect है at the arm और medially in the antecubital space, ये इसको हम लोग antecubital space भी बोलते हैं। radial at the thumb side, okay, at the thumb side of the inner aspect of the wrist। so wrist का inner aspect thumb के side में, जहाँ पे रेडियल आर्टरी रेडियल बोन के ऊपर से रन करता है, तो वहाँ पे हम लोग रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं। फीमोरल, where the femoral artery passes alongside the inguinal ligament, ओके, जहाँ पे femoral artery inguinal ligament के ऊपर से पास होता है, साइड से पास होता है, वहाँ से हम लोग femoral pulse चेक कर सकते हैं। ओके, so यहाँ पे 6 and apart from that 3 more sites are there to check the pulse। Now पल्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज टैकीकार्डिया। हम लोग नॉर्मली जो पल्स रेट देखा था दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो टैकीकार्डिया किसको बोलेंगे? अगर पल्स रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट, 100 बीट से अगर ज्यादा हो गया 1 मिनट में, तो हम लोग इसको कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलेंगे। ब्रेडिकार्डिया, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। सो नॉर्मल रेंज है ना, साइड से 100 जो नॉर्मल रेंज है, अगर साइड से कम हुआ है तो हम लोग इसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, अगर 100 से ज्यादा हो गया तो हम लोग इसको टैकीकार्डिया बोलेंगे।
नेक्स्ट विल सी एरिथमियस. एरिथमियस मींस जो नॉर्मल पल्स का जो रिदम है ना, उसमें अगर कोई भी वेरिएशन है, इट इंडिकेट्स एनी वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल रिदम ऑफ द पल्स, उसको बोलते हैं एरिथमियस. देन इंटरमिटेंट पल्स. ओके, इंटरमिटेंट पल्स का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट पल्स है मिस्ड बीट एट रेगुलर इंटरवल. सो रेगुलर इंटरवल में अगर बीट मिसिंग हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरमिटेंट पल्स बोलेंगे. देन एक्स्ट्रा सिस्टोल. एक्स्ट्रा सिस्टोल मींस व्हेन द कार्डियक कंट्रैक्शन ऑकर प्रीमेच्योरली. ओके, प्रीमेच्योरली कार्डियक कंट्रैक्शन ऑकर होने से उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल. देन आर्टेरियल फिब्रिलेशन. Arterial fibrillation is the rapid contraction of the atrium. Okay, atrium का अगर बहुत rapid contraction हो रहा है और जिसके वजह से ventricle का भी irregular contraction हो रहा है in both rhythm and in the force. Because atrium का अगर rapid contraction हो रहा है तो ventricle का भी तो contraction irregular हो जाएगा ना. Then ventricular fibrillation. Arterial fibrillation है rapid contraction of the atrium which causing irregular contraction of the ventricles, and in case of ventricular fibrillation there is a rapid twitching of the ventricles. ठीक है, वहां पे जो ventricle का जो rapid twitching है ना, really it is fatal. ये पेशेंट के लिए बहुत फेटल हो सकता है ventricular fibrillation. उसके बाद है sinus arrhythmias. Sinus arrhythmias का मतलब है a condition in which pulse rate is rapid during inspiration. इंस्पिरेशन का मतलब है जो सांस जो हम लोग अंदर लेते हैं. सो सांस अंदर लेने के टाइम में पल्स रेट बहुत रैपिड है, बट जब हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं, ओके, जो एक्सपिरेशन अगर करते हैं ना, एक्सपिरेशन एंड द स्लो एक्सपिरेशन, सो ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन इट बिकम स्लो. इसको बोलते हैं साइनस एरिथमियस. सो साइनस एरिथमियस इट इज अ कंडीशन जहां पे इंस्पिरेशन के टाइम में पल्स रेट रैपिड होता है एंड एक्सपिरेशन के टाइम में स्लो होता है. नेक्स्ट इज डाइक्रोटिक पल्स. सो डाइक्रोटिक पल्स का मतलब है देयर इज वन हार्ट बीट. ठीक है, एक हार्ट बीट है एंड